أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا میں نے وعدہ کیا تھا انشاءاللہ باذن اللہ آج سے ہم لوگ ریویژن کریں گے اور یہ ماسٹر کلاس ہوں گے اور ریویژن پورا ڈیٹیل ہو جائے گا، اسم کا، فعل کا، جملے اسمیہ، جملے فعلیہ، جملے فعلیہ میں ماضی مضارع اور تمام چیزیں ہو جائیں گی۔ تو یہ ویڈیوز کو آپ حفاظت سے رکھیے اور دیکھتے رہیے، اور یہ فائنل ورژن ہے، اس میں نہ صرف تھیوری ہوگی بلکہ 3 دن میں یہ ناؤنس کی پوری تھیوری ختم کریں گے اور 2 دن میں اس کے اوپر جملے، مختلف جملوں کی مشقیں ہوں گی۔ تو یہ کر کے رکھنے سے آپ کے پاس میں ایک بہترین ورژن ہو جائے گا ریکارڈڈ، اور ہمیشہ کسی کو پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے انشاءاللہ یہ کام میں آئے گا۔ تو جیسا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسما، عربک ناؤنس۔ عربک ناؤنس کو 4 آیام پہ دیکھا جاتا ہے۔ جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم نے نام دیا ہے ڈی آئی ڈی۔ ڈی یعنی کیپیسٹی، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، آئی یعنی اعراب، این یعنی نمبر، نمبر یعنی عدد، اور جینڈر یعنی جنس۔ یہ 4 چیزوں کو اگر آپ ہر ایک ناؤن کو اس پیمانے پہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو ہم شروع کرے تھے حرف ہجا سے۔ حرف ہجا کے بعد میں ہم نے دیکھے تھے کس طرح سے الف اور یا لگانے سے اور واو لگانے سے آوازوں کو لمبا کیا جاتا ہے، اور اس کو عربی میں زبر کو کہتے ہیں فتح، زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ، اور کوئی حرکت نہ ہو تو ساکن سکون۔ اور اس طرح سے آپ کے تجوید کے رولز میں بھی ہم نے دیکھے تھے، زبر، زیر، پیش، ساکن اور مشدد۔ پھر اس کے بعد تنوین، تنوین کے اندر دیکھیں گے فتح تین، ضمہ تین اور کسرہ تین۔ یہ ہندوستان میں تنوین کہتے ہیں، لیکن عرب میں کہتے ہیں اسے فتح تین، ضمہ تین اور کسرہ تین۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے الف اور حمزہ کے فرق کیا ہے۔ الف صرف آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسا مالا، ماں، اور حمزہ کے 2 قسمیں ہیں۔ حمزہ کے رائٹنگ رولز کے قسموں کو ہم باریکی سے دیکھیں گے۔ جس الف پر کوئی حرکت نہ ہو، جس پر حرکت نہ ہو اسے الف کہتے ہیں، جو لائن پر حرکت نہ ہو اسے الف کہتے ہیں، اور جو بیچ میں آ سکتا ہے، پہلے کبھی نہیں آئے گا، کوئی ورڈ کے پہلے کبھی نہیں آئے گا، ورڈ کا پہلا لیٹر کبھی نہیں بنتا ہے، روٹ لیٹر کبھی نہیں بنتا، مادے میں الف کبھی نہیں آتا۔ تو الف کے متعلق بڑے اہم چیزیں یاد رکھیے، جس پر حرکت نہ ہو اسے الف کہیں گے، اور الف جو ہے کسی بھی لفظ سے پہلے کبھی بھی پہلا لیٹر نہیں بنے گا، نہ ہی مادہ بنے گا۔ الف اور حمزہ میں یہی بڑا فرق ہے۔ حمزہ کے اندر 2 قسم کے حمزہ ہے۔ پہلا ہوتا ہے جو متحرک ہوتا ہے، اپنی حرکت لے آتا ہے، اس کے خود کی حرکت ہوتی ہے، زیر، زبر، پیش۔ اس حمزہ کو حمزہ قطع کہتے ہیں، اس حمزہ کو قطع کہتے ہیں، اور اس کے آنے کی جگہ شروع میں آتا ہے، اور اس سے ٹیمپرری حرکت دیتے پڑھنے کی سہولت کے لیے، تو وہ جو ہوتا ہے حمزۃ الوصل۔
दोनों में फर्क समझिए। हमज़तुल ख़ता के ऊपर रेडीमेड हरकत होती है, हमज़तुल वस्ल के ऊपर हरकत नहीं होती है। तलफ़्फ़ुज़ के लिए हम ज़बर ज़ेर पेश देते हैं उसको, तो ये हमारा दोस्त है हमज़तुल वस्ल। लेकिन हमज़तुल ख़ता रेडीमेड अपनी हरकतें लाता है, और ये शुरू में भी आएगा हमज़तुल ख़ता, बीच में भी आएगा हमज़तुल ख़ता, आखिर में भी आएगा हमज़तुल ख़ता। इसकी अपनी हरकत होती है, और ये कभी भी ड्रॉप नहीं होता, डिलीट नहीं होता। इसकी आवाज़ को कभी बंद नहीं कर सकते। ये माते का भी हक बन सकता है। अच्छा, इसके अलावा ये अपनी कुर्सियां भी होती है इसकी, इसके लिए इसको किंग हमजा कहते हैं। किंग हमजा यानी हमज़तुल ख़ता, और हमज़तुल वस्ल जो है शुरू में आता है खाली, और उसको हम हमारी सहूलत के लिए हरकत देते हैं। तो देखिए, हमज़तुल वस्ल के मुताबिक, हमज़तुल ख़ता के मुताबिक और अलीफ के मुताबिक जो मैंने अभी अर्ज किया, वो तमाम चीजें यहाँ पर आपके लिए डिटेल में लिखी है। और कोई भी डाउट है तो खामोश मत रहिए, मेहरबानी करके पूछिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। नहीं हुआ तो कल बताएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आपको बताएंगे पूरी तरह से। अब ये आ गई हमजा की मुख्तलिफ कुर्सियां। हमज़तुल ख़ता अपनी कुर्सियां साफ लाता है। एक तो उसको हमजा की शक्ल में लिखा जाता है यशाउ। अब यंतज़ियु के अंदर या के ऊपर हमजा ने कुर्सी बना लिया है, उसके बाद में वाव पे कुर्सी बना लिया है, फिर अलीफ पे कुर्सी बनाया है, फिर अलीफ पे कुर्सी, यानी 5 मुख्तलिफ शक्लों में हमज़तुल ख़ता आपको कुरान में नजर आएगा। इसके बाद एक हमजा आता है, उसे कहते हैं हमज़तुल इस्तिफ़हाम। हमज़तुल इस्तिफ़हाम दरअसल एक हर्फ है जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है। आहाज़ा किताबुन, है क्या ये कोई किताब? इस तरह से सवाल करने के लिए, तस्दीक करने के लिए हमज़तुल इस्तिफ़हाम कहते हैं इसे। अच्छा, हमज़तुल वस्ल के मुतालिक ये बात याद रखिए कि जब हम लोग किसी भी इस्म को मारूफ बनाना है, तो उसे हम अलिफ लाम लगाते हैं। इसको लाम तारीफ भी कहते हैं, ठीक है। और अल लगाते टाइम पर यहाँ पे दरअसल हमजा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ लाम है यहाँ पे। ला किताबु बनेगा, ला किताबु, लेकिन पढ़ने के लिए हमने उस पर एक जबर दे देते हैं, अल किताबु बनते हैं। तो इसके अंदर अल के अंदर जो हमजा है वो हमारी पढ़ने की सहूलत के लिए, तो ये दोनों मिलकर बनेगा अल किताबु द बुक। इसके दो नाम है, मुअर्रफ बिल लाम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ यानी किसी को मारूफ बनाना, मखसूस बनाना, फेमस बनाना, तो वो काम सिर्फ लाम करता है, इसका नाम ही है मुअर्रफ बिल लाम। लेकिन लाम पर सुकून रख के अगर हम लिखेंगे, लाम सुकून उसके बाद किताबु, तो पढ़ना नहीं है। पढ़ने की सहूलत के लिए हमज़तुल वस्ल दिया जाता है। अभी कुछ मैं बड़ी अहम चीजें आपको बताने लगा हूं कि 3 हरकत होते हैं अरबी में, जेर, पेश और जबर। जेर, पेश और जबर। जेर सबसे ऊंचे दर्जे का माना जाता है, जेर सबसे पावरफुल माना जाता है। उसके बाद आता है पेश, और उसके बाद आता है जबर। तो जेर जबर पेश बोलते हैं हम, तो उसके बजाय आप जेर पेश जबर बोलते थे। जेर, पेश, जबर और साकित, ऐसे 3 हरकत है अरबी में। लेकिन पावर के हिसाब से, ताकत के हिसाब से सबसे ताकतवर समझा जाता है जेर। उसके बाद नंबर आता है पेश का, उसके बाद नंबर आता है जबर का,
اور آخری آتا ہے ساکن. یہ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بہت آسانی سے سمجھ رہا ہوں. یہاں پہ ذرا غور کیجیے. یہ لفظ پڑھی راسل. یہ راسل جو بنا ہے اپنے پاس میں اسٹاک میں کون کون ہے؟ زیر، پیش اور زبر اور سکون. دراصل مطابقت کا جو قانون ہم نے پڑھے تعلیمات میں، بے زیر بی اور اس کو یہاں لگائے تو بی بنے گا، بے پیش بو اور واو لگا دی تو بو بنے گا، با زبر با الف لگائے تو با بنے گا. اب ذرا ادھر لیفٹ سائڈ دیکھیے، حمزہ پر یہاں جو پیلا کلر کا دکھ رہا ہے، حمزہ پر کیا ہے؟ سکون ہے. لیکن اس سے پہلے رے کے اوپر زبر ہے. را پہ کیا ہے؟ زبر ہے. حمزہ پہ کیا ہے؟ سکون ہے. اب آپ کو یہاں پر جج کرنا پڑے گا کہ زبر اور سکون میں طاقتور زیادہ کون ہے؟ زبر اور سکون میں طاقتور کون ہے؟ دیکھیے یہاں پہ چارٹ دکھ رہا ہے، واضح بی، باز پیش بو اور واز زبر با اور آخر کو ساکن. تو ساکن سے اونچا جو ہے زبر ہے. تو قطع جو آ رہا ہے، زبر جو آ رہا ہے، اس کی مطابقت کس کے ساتھ ہے بھائی؟ الف کے ساتھ ہے. رے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. رے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. اسی لیے حمزہ کی کرسی الف بنتی. اس لیے حمزہ کو خالی لکھتے نہیں، الف کے اوپر لکھتے ہیں. الف پہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ حمزہ سے ماقبل کیا ہے؟ رے ہے. اور رے پہ کیا ہے؟ زبر ہے. اور یہ دونوں میں بیلنس کر کے دیکھیے، زبر اور ساکن میں بڑا کون ہے؟ زبر ہے. زبر جب بڑا ہے اس لیے الف کی کرسی پہ حمزہ صاحب بڑھ جاتا ہے. یہ دوسری بات ہے. اب کیا ہے ذرا غور فرمائیں. پہلے رے زبر را ہے، پھر اس کے نیچے حمزہ کے نیچے کیا کرے؟ زیر. حمزہ کی حرکت کیا ہے؟ زیر ہے. حمزہ سے ماقبل کیا ہے؟ زبر ہے. حمزہ سے ماقبل کیا ہے؟ رے پہ زبر ہے. حمزہ سے پہلے زبر ہے. پھر ہم کو یہاں چیک کرنا پڑے گا زبر اور زیر میں بڑا کون ہے؟ تو زیر بڑا ہے. دیکھیے پھر سے چارٹ چیک کیجیے، زیر پیش زبر، زبر سے بڑا کون ہے؟ زیر ہے. اس لیے حمزہ کو یا کی کرسی پہ بٹھا دیا. تو یہ ہو گیا رائٹ سن. یہ ہے رائٹنگ رولز عربی. اگلا دیکھیے سوال. کیا ہے؟ سوال. پھر سے اپنے چارٹ دیکھیے، زیر پیش زبر سکون. اب یہاں پہ واو دیکھیے، حمزہ پر کیا ہے؟ حمزہ پہ حرکت کیا ہے؟ زبر ہے. حمزہ پہ حرکت کیا ہے؟ زبر ہے. حمزہ پہ زبر ہے، ماں خبر پیش ہے. حمزہ پہ زبر، ماں خبر پیش ہے. اب پیش کے مطابقت کس سے ہوتی ہے بھائی؟ واو سے. پیش کے مطابقت کس سے ہوتی ہے؟ واو سے ہوتی ہے. اور زبر اور پیش میں بڑا کون ہو؟ پیش ہے. زبر اور کون بک بک کر رہا ہے؟ زبر اور پیش میں اسٹرانگ کون ہے؟ پیش ہے. اس لیے واو کی کرسی پہ حمزہ بیٹھا. تو میں نے بتایا تھا حمزہ کی کرسیاں ہوتی ہے. تو حمزہ کی کرسیاں ہونے کی وجہ یہی ہے. یہ کرسیاں جو ہے جادو سے نہیں آتی، یہ تجوید کے رولز کے متعلق آتی. تو یہ آپ نوٹ کر لیجیے. میں پھر سے ایک بار لے جاؤں گا آپ کو وہاں پہ، تو آپ نوٹ کر کے رکھیے، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو کام میں آئے گا. دیکھیے یہاں سے شروع ہوا، یہ کیا لکھا ہے؟ 5 اسٹار کون ہے؟ زیر ہے. 4 اسٹار کون ہے؟ پیش ہے. 3 اسٹار کون ہے؟ زبر ہے. اور 2 اسٹار کون ہے؟ ساکن. تو یہ 3 ورڈ بنانا ہے. راسن، رئیسن اور سوال. یہ بنانے کا طریقہ کبھی نوٹ کر لیجیے. اسٹرانگ کس طرح، پہلے اسٹرانگیسٹ، پھر اسٹرانگر، پھر اسٹرانگر، پھر لیسٹ اسٹرانگ. تو یہ الف کرسی کیوں بنی، اس کے اندر آپ کو سکھانا آئے گا، سمجھانا ہے. کوئی بھی چیز بلینک نہیں رہنا، سمجھ میں آنا. اب یہاں پہ حمزہ کی کرسی یا کیوں بنی، اس کی بھی یہ وجہ ہے. اس کے بعد میں حمزہ کی کرسی واو کیوں بنی،
इसकी ये वजह है। तो इस जरा सी सांस लीजिए, अगर कुछ नहीं समझा तो पूछिए। हम फिनिशिंग कर रहे हैं इसम की, और ये मास्टर क्लास रहेगी, 1 घंटा होगी, उसके बाद हाफिज साहब टेक आउट कर लेंगे, तो आप सवाल कर सकते हैं। अगली चीज देखने जा रहे हैं हम, हरफे हिजा के बाद हमने देखे थे 28 हर्फ है हमजा छोड़कर। अब ये 2 डिफरेंट स्कूल्स है, कुछ लोग बोलते 29 है, कुछ लोग बोलते 28 है। हम उनके आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे, हम बोलेंगे दोनों सही है। और यहाँ पर हरफे हिजा को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। अब किस तरह से हरफों को बना दिया है, शमसिया और हरफे कमरिया। शमसिया वो हर्फ होते हैं, प्रोनाउंसिएशन शम्स करे थे, जो आपको समझ में आता है जुबान की नोक से, जिनका हम तलफ़ुज़ करते हैं, वो हरे रंग में बताए गए। और जिसका हम हलक से करते हैं, उसे नीचे डार्क में बताया गया है। और ये दोनों के एग्जाम्पल्स कई मरतबा हम ले चुके हैं, और आपको देखने के लिए, समझने के लिए, पढ़ाने के लिए ये बेहतर साबित है। और उसकी वजाहत ये है कि ऊपर में सन लिखा हुआ, सूरज दिख रहा है, तो शमसिया है। तो शमसिया के मुख्तलिफ लेटर्स लिखे हैं। अब इसका हमें हमारी रोज की जिंदगी में अब मौरफ बिल लाम लगाएंगे हम, तो मौरफ बिल लाम पर साकिन होता है, और उससे पहले हमारा हमजा तो वसल होता है। तो जब हम मौरफ बिल लाम लगा के पढ़ने जाएंगे, तो लाम को लिखा जाएगा, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, रू बनेगा चेस्ट। तो नीचे मैंने लिखा है मस्ट स्किप दिस, मतलब लाम को ड्रॉप करना जरूरी है। अल शम्स नहीं है, वो अशम्स हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए मून लेटर में अगर ऐसा होता है क्या, नहीं होता। मून लेटर में देखिए अल कमर, क्योंकि हल्की है तो अल पूरा पढ़ा जाएगा, लाम पर सुकून के साथ पढ़ा जाएगा। लेकिन नीचे सन लेटर है, अशम्सु के अंदर लाम बैठ जाएगा, गिर जाएगा। इसी के कुछ एग्जाम्पल्स है, कमरी और शमसी अल्फाज प्रैक्टिस के लिए आप पढ़िए भाई, ऑनलाइन पे पढ़िए। अल-आदिल, अद-दर्स, अल-हसन। तो देखिए जहाँ पे अल बाकी है वो कमरी है। अल-गालिब, अल-खालिक, अल-नहार, अल-वलद, الولد अत-तमर। التمر الفاسد देखो जी, आपका रिवीजन हो रहा है, आप जानते हैं सब चीजों को। जोर से पढ़िए, आप सब लोग मिलकर जोर से पढ़िए। القمر المسجد البيت الباب المكتب الكتاب القلم الورق अल्फम, الفم اليد हाथ, الوجه الأذن चेहरे की, الغداء الهواء उज़्र, उज़्र का मतलब हाथ। الماء القرآن। माशा। तो यहाँ पे जितने भी आए हैं, इसमें एक भी शमसिया नहीं है, इसलिए पूरे अल पढ़े गए। अब नीचे आ जाइए, ये शमसी किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। पढ़िए, अशम्स, الشمس النجم الشمس अब देखिए नजमों की तरफ नजमुन था, पहले क्या था, नजमुन, कोई एक सितारा। अल लगा दिए तो क्या तब्दीली आएगी, एक तो उसकी तनवीन की धम्मा उखड़ गई है, और नजमों के साथ लगाने से नून मुशद्दद हो गया। सुक्कर, शक्कर को बोले हाँ अस्सु।
अब अगर इसको हम अल शम्सुन लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, तो अल शम्सु ही बराबर बनेगा। ये दो गलतियां यहाँ पे वाजे कर दी। चलिए अब ये पूरे फिर से एक बार पढ़ लीजिए तो खबरिया दोनों मिल जाएंगे आपको। अशम्सु, अस्सरीरु, السرير السمك السكر الرجل الشمس الرقص السرير الدفتر الضيف الصقر الطالب الرجل الطيب اللحم الدهر اللبن الضيق الطالب الطيب اللهم اللبن الثواب الساهقون الصادر الصلاة. तो रूल तो ख्याल रख के देखिए कि कहाँ पे मुशद्दद हो रहा है, कहाँ पे अल पढ़ना है, कहाँ पे अल नहीं पढ़ना। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम हमारी मेन लाइन को लग रहे हैं। लफ्ज, लफ्ज का मतलब मुंह से निकलने वाले किसी भी वर्ड को लफ्ज कहते हैं। लफ्ज दो तरीके के होते हैं, एक मीनिंगफुल होता है, एक मीनिंगलेस होता है। मीनिंगफुल को क्या बोलेंगे हम? मौजू या बामाने। और जिसमें से मायने निकलते नहीं है उसको मुहमल कहते हैं, बेमानी, उसके कोई मानी। कुरान में ऐसा कोई भी लफ्ज नहीं है जो बेमानी मीनिंगलेस है, तो उसके ऊपर हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप लोग ना चाय वाय पिएंगे, खाना वाना खाएंगे, तो चाय के साथ वाय की कोई मायने नहीं है, खाने का साथ वाना नहीं है। क्लास वास करेंगे तो कुछ भी नहीं। तो अरबी के पूरी तमाम अरबी बनी है 3 कलिमात को मिलकर। कलिमा यानी बा माने निकला हुआ किसी भी जुबान से लफ्ज, तो वो बा माने लफ्ज में एक हो सकता है इस्म होगा, नाउन, फेल हो सकता है वर्ब, और पार्टिकल हो सकता है हर्फ। नाउन, वर्ब, पार्टिकल, ये 3 ही चीजों से तमाम अरबी जुबान बनी है। जरा गौर फरमाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कलिमात की अक़साम, अभी जो बताया मैंने इंग्लिश में लिखे थे, उर्दू वालों के लिए है। कलिमा को अरबी जुबान में 3 अक़साम में इस्मुन, फ़िअलुन और हर्फुन से जाना जाता है, और ये सब माने वाले होते हैं। इस्म के मायने होते हैं शख्स का नाम, चीज का नाम, जगह का नाम, या कोई एडजेक्टिव का नाम, या कोई नाउन। फ़िअल का मतलब होता है ऐसा कलिमा जिसमें किसी काम का किया जाना और जमाना यानी टेंस पाया जाता है। तो फ़िअल को बंदिश होती है वक्त की। फ़िअल पर वक्त की मार होती है, तो उससे आपको प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस बताया जाता है, बाकी दीगर जबान। लेकिन अरबी में 4 चीजों पे बताया जाता है। फ़ेलुल माज़ी, फ़ेलुल मुज़ारे, फ़ेलुल अम्र और नाहिया। उसके बाद आता है हर्फ। हर्फ ऐसी चीज है, ऐसा कलिमा जिसके माने खुद के कोई माने नहीं होते, वो इस्म या फेल के साथ जुड़कर जब आता है तो वो माने पाता है। तो हर्फ के खुद के जाती मायने कुछ भी नहीं होते, वो किसी के साथ जुड़कर आएगा तो ही मायने वाला बनेगा। ये तीनों चीजें मिलकर ये नाउन, बड़ी बस दिख रही, पिकअप दिख रही वर्ब, और छोटी गाड़ी दिख रही पार्टिकल, यानी कि हर्फ। अब ये तीनों भी अपनी अपनी एराबी हालत में आएंगे। धीरे धीरे एक एक स्टेप अब आगे बढ़ रहे हैं। जुबान से निकलने वाले कोई भी बोल को लफ्ज कहते हैं, और वो 2 किस्म के होते, बामाने या बेमाने। बेमाने का अपने पास कोई लेना देना नहीं, ठीक है। एक अकेले कलिमे को मुफरद कहते हैं। मुफरद का मतलब अकेला, अकेला, वाहिद, अकेला।
तन्हा, और उसके 3 टुकड़े होंगे, इस्म, फ़ियल, हर्फ। अभी मैंने आपसे बयान किया इस्म क्या है, किसी चीज का, जगह का, किसी का नाम, ठीक है, किसी तरकीब का भी नाम हो। फ़ियल किसी काम को कहते हैं, हर्फ किसी इस्म या किसी फ़ियल के साथ आए। अब आगे चलिए, 2 या 2 से ज्यादा कलिमात इकट्ठा आ जाए तो उसे मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब के भी 2 टुकड़े होते हैं, मुरक्कब नाक़िस, इसको हम कहते हैं मुरक्कब नाक़िस को अंग्रेजी में फ्रेज। इसके मानी नहीं होते, मुकम्मल मानी निकलते नहीं, अधूरे निकलते, ये जुमला नहीं होता है। मुरक्कब ताम ये जुमला होता है, इसमें से जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया दोनों भी बन सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट हमारे पढ़ने का पहला आपका इंट्रोडक्शन। अब अरबी के 2 साइंस है, साइंस यानी उलूम है। पहला होता है इल्म नहव और दूसरा होता है इल्म सर्फ। एक एक चीज आप समझेंगे। इल्म नहव देखिए, ये जो जुमला बना हुआ है आपके सामने, ये आयत का कुल हुवल्लाहु अहद, ये जिस तरह से तरकीब वाराना लफ्जों को बंदिश की गई है, जो लफ्जों की तरतीब की गई है, इसे नहव कहते हैं, यानी जुमला बनाना। और जुमले के अंदर की एक एक चीज पढ़ेंगे हम कि कुल क्या है, ये खवला से आया, खवला, काला, यकुलु और कुल, ला तकुल। तो ये जो इसके अंदर की सर्फ है, तब्दीलियां है, तगय्युरात है, उसको इल्म सर्फ कहते हैं। तो ये दोनों उलूम पढ़े तो ही अरबी आए। अब माजरत इंग्लिश, एक बात तारीफ बोलिए सर। एक बार इसका तारीफ जो है, जी लफ्जों बंदिश, लफ्जों को तरतीब वाराना वामानी बनाने के लिए जो तरकीब इस्तेमाल करते हैं उसे इस इल्म नहव कहते हैं। सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स टू प्रोड्यूस a sensible and meaningful effect। जी तरतीब से लफ्जों की बंदिश करना और उसमें से एक ख्याल पैदा करना, उसको कहते हैं इल्म नहव। और इंडिविजुअल यानी कि एक अकेले चीज का इल्म निकालना है, वो कहाँ से बनी है, कहाँ से आया, उसका माजी, मुजारे, अम्र और नाहिया, तमाम उसके सर्फ सगीर और तमाम उसका सर्फ कबीर करने को कहते हैं इल्म सर्फ। अंग्रेजी के कंपैरिजन में देखेंगे तो अंग्रेजी के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इंटरजेक्शन, वर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन। तो ये पहले 5 जो है, ये सब अरबी में नाउन के तहत आ जाएंगे। इस्म के तहत क्या जाएंगे, इस्म आ जाएगा, ज़मीर आ जाएंगे, सिफत आ जाएगी, ज़र्फ आ जाएगा और ताज्जुबी आ जाएगा। वर्ब जो है अरबी का और अंग्रेजी का सेम जाएगा। और पार्टिकल यानी हर्फ जो हम बोलते हैं इंग्लिश में कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब एंड वगैरह, कॉमा, ये जो भी चीजें होती है वो कंजंक्शन होती है, यानी कि जुमले के अंदर 2 जुमलों को, 2 लफ्जों के या 2 फ्रेजेस को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होता है उससे हर्फ कहते हैं। या हर्फ फिर हर्फ जर भी हो सकता है, इल्ना भी हो सकता है, तमाम चीजें काय में आ जाएगी हर्फ में। तो किसी ने आपसे पूछा कि अंग्रेजी के पार्ट ऑफ स्पीच के बनिस्बत अरबी में क्या है, तो आप ये बताएंगे कि ये 5 चीजें नाउन के तहत आती है, वर्ब आते हैं और हर्फ आते हैं। ये तीनों मिलकर अंग्रेजी के 8 के बराबर है। ये कलिमा है। अभी आप पूछ रहे थे
किसी भी लफ्ज के बामाने मीनिंग को कलिमा कहते हैं। अब कलिमा बनाने का तरीका आप जानते हैं, कुछ हरकत होंगी। क्या होंगे भाई? हरकत। कभी मैंने एग्जाम्पल लिखा काताबा, काफ है उसके ऊपर जबर है, ते है उस पर भी जबर है, बे है उस पर भी जबर है। ये तीनों जबर को क्या बोलेंगे? हरकत। क्या बोलेंगे? हरकत। ये हरकत की वजह से हमारे लफ्ज की बंदिशों और आखिरी हर्फ पर जो तब्दीलियां आती है उसे एराब कहते हैं। तो वो आगे चल के बहुत तफसीली पढ़ेंगे हम। यह है इस्म। अभी मैंने इसके बारे में बता चुका। अब हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा है इस्म का। इस्म के अंदर 4 खुसूसियात होते हैं, 4 प्रॉपर्टीज होते हैं। पहली प्रॉपर्टी जिनको जिन्स है, पहली प्रॉपर्टी पहले एराब है, फिर वुसत है, अदद है और जिन्स है। एराब का मतलब है कि वो मारिफा है, नकीरा है। इसके अंदर हमारे जो हरकत देते हैं हम, किताबुन, किताबन, किताबिन, तो ये आखिरी लेटर पर जो हरकत आते हैं उसको एराब कहते हैं। अच्छा, डेफिनेट इंडेफिनेट यानी कि मारिफा या नकीरा होना वुसत के तहत आता है। वाहिद तस्निया जमा आता है तो अदद के तहत। मुज़क्कर और मुअन्नस आता है तो जिन्स के तहत। तो हमने इनके शॉर्ट फॉर्म करे हैं। डेफिनेट इंडेफिनेट की जगह पे डी ले लिए हैं, उस अर्थ के अंदर आ गया। एराब का आई ले लिए है, आया। नंबर यानी अदद हो गया एन, जिन्स हो गया जी, ये तमाम मिलके डिंग बन गया। डी डेफिनेट इंडेफिनेट, आई एराब, एन इज फॉर नंबर, जी इज फॉर जेंडर। इतने सब याद रखने के लिए आप डिंग याद रख लीजिए, आपको सारी चीजें समझ गए। तो जब इसम देखने लगते हैं हम, तो हमको माइक्रोस्कोप में डालकर इससे ये डिंग के पैमाने पर उसकी हमको आजमाइश करनी होती है। इसम के 4 पहलू, ये अभी जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, डी यानी डेफिनेट इंडेफिनेट, क्या क्या मिलेगा भाई? नकीरा, मारिफ। एराब के हिसाब से क्या मिलेगा? रफा है, नस्ब है या जर है। एन के हिसाब से नंबर मिलेगा, वाहिद है, तस्निया है या जमा है। जी के हिसाब से जेंडर मिलेगा, उस पर समझेगा मुज़क्कर और मुअन्नस को है। अब इसम दरअसल ये 6 चीजों में इस्तेमाल करता है अरबी। शख्सी तौर पर हम जो दमायर इस्तेमाल करते हैं, पहले तो शख्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, वो भी इसम है। उसकी जगह दमायर इस्तेमाल करते हैं, वो यानी शख्स का नाम हामिद है, उसके जगह पे जो हुआ इस्तेमाल करे। जगह का मतलब है जो भी नाम ले लीजिए, हैदराबाद है। फिर चीज का नाम है, पेन है, कलम है। वर्बल नाउन यानी मस्दर, मस्दर आपको सिखाए हैं। मस्दर का मतलब जहां से तमाम चीजें निकलती है, फाउंटेन है, मंबा है, उसको मस्दर कहते हैं। एडजेक्टिव सिफत है, एडवर्ब ज़र्फ है। ये तमाम चीजों की वजाहत ये है। देखिए, किताबुन, किताबुन यानी किसी चीज का नाम। और वो जो छोटा सा बच्चा बैठा है, उसके अब्बा ने उसका नाम मोहम्मद रखे। दरअसल वो पैदा हुआ था वलदुन कर। और वो छोटी मुन्नी दिख रही है, उसको उसका नाम जैनब है, मोमिन अब्दुल। और वो थी, पैदा हुई तो बिंतुन थी। ये गाड़ी है, गाड़ी को हम लोग सैयारतुन कहते हैं। अच्छा, ये देखिए मस्दर, मस्दर यानी सुनना, सुनने का काम। ना जब लगेगा उर्दू में, सुनना, खाना, बोलना, पीना, ये मस्दर है। समाउन, सुनना। तकल्लमुन, बोलना, ये शहर का नाम है। फिर एडजेक्टिव 2 है, वो बड़ा मोटो, जरा धीरे भागता है, स्लो है।
تو बतीयुन कहेंगे। और वो दूसरे वाला बड़ा तेज भागता है तो सरीउन कहेंगे। तो उसका दौड़ना कैसा है? तेज है। पहले वाले का दौड़ना कैसा है? धीमा है। तो वो हो गए 6। ये 6 पिक्चर्स में आपको अभी जो मैंने 6 बातें बताया उसकी वजाहत इंशाअल्लाह हो गई होगी। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 2 किस्म के इस्म होते हैं, मारिफा और नकीरा। तो पहले मारिफा नकीरा क्या है देख लेते हैं, फिर आएंगे उधर देख। किसी भी इस्म को 2 तरीकों में तकसीम किया जाता है, वुसअत के हिसाब से, यानी उसकी ताकत के हिसाब से। मारिफा यानी मखसूस और नकीरा यानी गैर मखसूस। इंग्लिश में जो मारिफा है उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं और जो नकीरा है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। मारिफा नकीरा, ये जरा आप पढ़िए तो आपको आसान हो। कोई पढ़िए भाई ऑनलाइन। ऑनलाइन वाले है कि चले गए? हामिद आया और हामिद उसने आया। कहा कि मैं हामिद पाकिस्तान से आया, आया हूँ। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ। ये किताब ये बहुत खूबसूरत है। अब तुम कोई कलम लाओ और एक कॉपी लाओ, ठीक है? कॉपी लो और उस पर लिखो। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी जो नाम लेते ही आपको समझ में आ रहा किसी का नाम है हामिद। और कहाँ से आया भाई उन्हें? मैं कोई नाम है क्या? मैं जो है ज़मीर है। मैं क्या है? प्रोनाउन है। अभी किसी कंट्री का नाम लिए देते ही आपकी आंखों में तस्वीर आ गई होंगी, पाकिस्तान। ठीक, उसके आगे चलो। ये यानी दिस, ये हो गया हमारा ज़मीर इशारा का। ये क्या है? किताब है। अब किताब कौन सी है पता लगी क्या आपको? नहीं, कोई तो भी किताब। ये नकीरा है। अब उन्हें उसके मुतालिक आगे बोल रहा है, बहुत खूबसूरत है किताब। कैसी है? बहुत खूबसूरत। तुम यानी तुम्हारे तरफ इशारा सामने आंखों की तरफ कर रहा है। तुम कोई कलम लाओ, कोई तो भी कलम। कलम कोई खास मखसूस है क्या? नहीं। और कोई तो भी एक कॉपी ले आओ, कोई भी कॉपी लाओ। ये भी नकीरा, कलम भी नकीरा। अब उसको वापस बोल रहा, उस पर लिखो। किस पर लिखो? जो किताब का मैंने जिक्र किया तो उन्हें मारिफा बन जाता। यहां देखिए, ये इधर इंडिफरेंट नकीरा। बहुत सारे लोग खड़े हैं, लड़के लड़कियां, मर्द या औरतें। तो उसमें से हमने किसी को भी नहीं जानना है, हमें कोई नहीं पहचानता, ना हम उन्हें पहचानते। तो वो सब किसी को भी एक को निकालेंगे तो बोले कोई तो भी एक लड़का है या कोई तो भी एक आदमी है, कोई तो भी एक लड़की है या कोई एक खातून है, तो नकीरा हो। लेकिन इधर के चीज में हमने वो नीले शर्ट वाले को 2 उंगलियों से पकड़ लिए। क्यों पकड़े भाई? हम उसको जानते हैं, उसका नाम हामिद। तो ये मारिफा, ठीक है? तो मारिफा नकीरा में मखसूस और गैर मखसूस होते हैं। तो हमने शुरू किए थे मखसूस और गैर मखसूस। तो मखसूस जो होते हैं, खास जो होते हैं, जिसको हम जानते हैं, उसको हम इसमें अलम कहते हैं। इसमें अलम यानी कि उसको झोले में डाल के नाम रखे और उसका नाम मारूफ है, इसलिए अलम रखे उसका। अब दूसरा होता है ज़मीर, मैं, तू, वो, आई, यू, ही, शी, इट। ये भी पूरे मारिफा। अब हमने इशारा करे ये बोर्ड नया है, तो इशारे से बताने वाला भी मारिफा। और ये बोर्ड जो नया है वो अच्छा दिखता है, तो इस पे मौसूल हो गए जो बताए उसको। हमने किसी को पुकारे अरे हामिद, तो मुनादा, अरे बोले और हामिद बोले। निदा मुनादा का मुनादा भी मारिफा है। और किताब किसकी है भाई? उस्ताद की किताब है। तो जब हम किताब का जिक्र कर रहे हैं, उसके मालिक का जिक्र करेंगे तो वो भी मारिफा। उसके बाद किसी चीज को अल लगा के बोलेंगे, अल किताब,
खास किताब। ये मारिफा के तमाम अक़सामात है। 7 किस्म से मारिफा इस्तेमाल होता है। इससे पहले आपको नॉलेज दी जा रही थी, अब आपका फर्ज है कि ये चारों 7 की 7 चीजें रट लेना और याद करना। जो भी लफ्ज अल से शुरू हो रहा है वो मारिफा है। झूले में डाल के रखे हुए नाम मारिफा है। प्रोनाउन हुआ, हुमा, हुम, ये सब भी मारिफा है। हाजा, जालिका, तिलका, ये मारिफा है। अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये भी मारिफा है। किसी को पुकारे ओ मूसा, जिसको पुकारे उन्हें मारिफा है। मूसा की किताब, ईसा की अम्मा, जिसका भी पोजीशन बता रहे वो मारिफा है। ये तमाम चीजें मारिफा है। तो मारिफा की ये है डेफिनेट यानी मखसूस, इनडेफिनेट यानी गैर मखसूस। इंग्लिश में उसको ए और एन लगाएंगे तो गैर मखसूस होता है, द लगाएंगे तो मखसूस हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, अमुस्लिम यानी कोई तो भी एक मुसलमान, द मुस्लिम यानी कि खास मुसलमान, मुस्लिमुन बन गया अल मुस्लिमो, तो मुस्लिमुन हो गया नकीरा, अल मुस्लिमो हो गया मारिफा। अब इंग्लिश में नीचे लिखा है मरियम, बोलते ही किसी का चेहरा सामने आता है, रखा हुआ नाम है। इब्राहिम बोलते ही समझ में आ जाता है, मक्का बोलते ही फट के आंखों के सामने आता। लेकिन जो सामने नहीं आता आंखों के सामने, कोई तो भी एक लड़की अगल नकीरा, अबॉय कोई तो भी एक लड़का नकीरा, अ सिटी कोई तो भी एक शहर नकीरा। अब बोले हमने रसूलुन, कोई एक रसूल, नबीयुन कोई एक नबी, वलदुन कोई एक लड़का, कौमुन कोई एक कौम, ये सब नकीरा है। नूहुन, नूह अलैहिस्सलाम का नाम है। मोहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम है। हामिदुन नाम रखा हुआ है। आदुन कौम का नाम है। ये सब के सब मारिफा है। देखिए इसमें अलम ऐसा इस्म है जिसको पढ़ते या सुनते ही एक खास शख्स का नाम मुतय्यन हो जाता है, शक्ल सामने आ जाती है। तो देखिए इसमें मारिफा के लिखे मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। मोहम्मदुन, मक्कतुन, अब्दुल्लाह, ठीक है, हज़रुल मौत और पाकिस्तान, ये सब आंखों के सामने आए, तो इसे इसमें अलम कहते हैं और ये सब मारिफा है। अच्छा, मारिफा नाम के साथ में अल नहीं लगाते, क्यों? तो उसको रखा हुआ नाम। और इसका लिखने का तरीका देखिए, मोहम्मदुन, ये 2 पेज देख के ये नहीं समझना कि नकीरा है। मारिफा बनाने का तरीका इसे, जो भी रखा हुआ नाम है उसके ऊपर 2 पेज लगा के तनवीन दे। बिलालुन, मोहम्मदुन, लड़कियों का बनाने का तरीका 2 पेज, उनको 2 सर पे पेज बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो नाजुक रहते, उसलिए एक ही पेज देते भाई। ज़ैनबो, फातिमा, तो लड़कियों को एक दम्मा मिलेगा और मर्दों को 2 पेज 2 दम्मा मिलेगा, इसमें अलम बनेगा। प्रोनाउन क्या चीज है? प्रोनाउन भी मारिफा होते हैं। इसमें ज़मीर कहते हैं ऐसा इसम है जिसके जरिए हम किसी चीज का नाम की जगह, किसी चीज के नाम के बजाय मखसूस चीज अंदाजा लगाकर हम बताते हैं कि वो, ये, वो दोनों, वो सब, एक गायब मुज़क्कर, एक गायब मुअन्नस। इस तरह से जब हम नाम बताएंगे तो बोलेंगे हुआ, हुआ, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम। इस तरह से जो भी होते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। उसको ज़मीर एक को कहेंगे, जमा को दमायर कहेंगे। दूसरा इसम आता है इशारतन बताने, इशारों से जो बताया जाता है, जैसा हाजा, जालिका, हाजिही, तिलका,
یہ تمام بتانے کے جو طریقے ہیں اس کو پوائنٹنگ ناؤن کہتے ہیں، اشارتاً بتانے کے اسے کہیں گے ہم اسم اشارہ، اسم اشارہ، یہ بھی معرفہ ہے۔ اب ریلیٹو پروناؤن یعنی کہ اسم موصولہ، اسم موصولہ میں ہم کہتے ہیں ایسا آدمی جو لمبا ہے، یعنی کہ قد اس کا لمبا ہے، ابھی نکلا کلاس سے باہر، اس کا نام حامد ہے۔ تو جو، جنہیں، جسے، جس کو، ایسا جب ہم کسی چیز کے ساتھ جوڑتے ہیں اس کو اسم موصولہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے پکارنے کا نام، یا ایھا الذین آمنوا، یا نبیو، یا حامدو، یا خالدو، یا انسو، ایسا جو پکارتے ہیں، جسے پکارا جاتا ہے، وہ بھی معرفہ ہوتا ہے۔ اب جو دو چیزوں کا مالک اور ملکیت کا رشتہ بتایا جاتا ہے اس کو بھی جو ہے ہم لوگ معرفہ کہتے ہیں۔ یہ پورے کے پورے معرفہ آ گئے 6 اور 7واں الوالا، یہ مکمل مل کے 7 معرفہ ہے۔ اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، حرف ندا، پھر اس کے بعد مضاف اور ال کے ساتھ بنایا ہوا اسم، یعنی کہ لام جب لگائیں گے تو کیا بولے تھے ہم نے؟ لام التعریف۔ اب اس کے ایگزامپل دیکھ لیجئے بھائی، یہ کتاب، کوئی تو بھی کتاب ہے، اس کو ال لگانے سے الکتاب بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو باقی کے شکلوں میں ملیں گے آپ کو الکتاب، 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 کتاب، کتابن، کتابن۔ یہ ال جیسا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا، الف اس کا حمزۃ الوصل ہے، پڑھنے کی آسانی کے لیے لگایا ہے۔ ایگزامپلس دیکھیے معرفہ کیسا بن رہا ہے۔ قلم ہے، ال جوڑے القلم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ القلم، قلم، قلمن، قلمن میں آئے گا، ال لگا کے بعد القلم، القلمہ، القلمی کی شکل میں آئے گا۔ اسی طرح سے صراط الوسطی، اب اس کو ال لگا، صراط تینوں شکلوں میں ملے گا، صراط، صراطن، صراطن، ال لگاتی ہی الصراط، الصراط، الصراطی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ کو انڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کا فرق سمجھے گا۔ دو دیکھیں، کتابانی، الکتابانی، 2 کتابیں، کوئی تو بھی 2 کتابیں، خاص کتاب۔ مومنون، بہت سارے مومن، کوئی تو بھی، المومنون، خاص مومن لوگ۔ کتب، بہت سی کتابیں، الکتب۔ مومنات، یعنی کہ بہت ساری فیمیل مومن، المومنات، بہت ساری خاص فیمیلز۔ یہ بنانے کا فارمولا یہ آ گیا فائنل۔ اور بک یعنی کتاب، ال لگا دیں گے تو الکتاب۔ پڑھ لیجیے بھائی ایک بار، آپ زور سے پڑھ رجل، پڑھیے۔ رجل، ماء، بیت، مسجد۔ دونوں پڑھنا ہے، آمنے سامنے پڑھنا ہے، ایسا پڑھو۔ جی جی رجل کو خاص پڑھنا ہے تو الرجل پڑھو۔ جی سر، رجل خاص کے لیے ال لگا کے الرجل، ماء خاص کے لیے الماء، کلب الکلب، بیت البیت، مسجد المسجد، سریر السریر۔ ماشاء اللہ۔ اب ہم آگے اگلے ٹاپک پہ، جس کا مطلب اعراب۔ اعراب کے متعلق ڈیفینیشن دیکھ لیجیے۔ اعراب یہ حرکت جو ہے، حرکت سے مختلف ہے۔ حرکت کسی بھی لیٹر پر ہونے والی تبدیلی کو حرکت ہے، لیکن اعراب کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے آخری لیٹر پر ہونے والی تبدیلی۔ رجل میں دیکھیے لام پر 2 پیش آ رہے ہیں، مسجد ویسے مسجدن ہے، اور جدار یعنی کہ دیوار۔ تو یہ جو دکھ رہے آپ کو 3 شکلیں، یہ 3 شکلیں تھی۔
वलदुन, वलदन, वलदिन, जो लास्ट लेटर पे तब्दीली हो रही है, तनवीन जिसे कहते हैं, ये जो तब्दीली है इसी को इराब कहते हैं। तो पहले वाली जो तब्दीली, पहले वाली जो शक्ल है, ये डिफॉल्ट शक्ल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रफा हालत, रफा हालत। दूसरे को बोलेंगे नस्बी हालत, और तीसरे को बोलेंगे जर्री हालत। मरफूउन, और क्या बोलेंगे? मरफूउन, मंसूबुन, मजरूर। मजरूर, जी, ये अंग्रेजी वालों के लिए आसानी के लिए अरबिक वर्ड एक्सपीरियंसेस 4 ग्रामेटिकल स्टेज। अरबी के हर्फ को 4 शक्लों में देखना जरूरी है। पहला है रफा, दूसरा है नस्ब, तीसरा है जर, और चौथा है जज़म, साकिन। ये 4 चीजों को दरअसल स्टेटस कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टेटस। वही समाज में आदमी का कोई स्टेटस होता है ना, वो स्टेटस जुमले में इस लफ्ज का क्या स्टेटस है, ये बताने के लिए 4 टाइप अरबी इस्तेमाल करता है। एक जुमला है, एक जुमले में कौन सा इस्म, उसकी स्टेटस क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो दिखाने। अब देखिए, दम्मा जो है ये बताता है कि नॉमिनेटिव केस में है, मतलब ये करने वाला है, रफा है, ये फाइल हो सकता है। मरफू हमेशा फाइल होने की तरफ इशारा करता है। अच्छा, फतहा जो है एक्विजिटिव केस होता है, नस्ब को बताता है, यानी इस पर किसी का काम हुआ होता है। कसरा यानी जर होता है, उस पर किसी हर्फ का असर होता है, या फिर वो मालिक मिल्कियत का रिश्ता होता है। सुकून होने की खास वजूहत है जिसको हम आगे बढ़े। तो ये 3 शक्लों में मिलते हैं। ऐसी प्रोसेस नाउन हो या एडजेक्टिव हो, उनमें 3 तब्दीलियां देखने को मिलती है। बैतुन, बैतन, बैतिन। ये क्यों होता है? इसके अंदर मायने कोई चेंज नहीं होते हैं, इससे खाली स्टेटस समझता है। स्टेटस का मतलब क्या है भाई? माशरे में, समाज में कोई डॉक्टर है, उसका स्टेटस अलग है, क्लर्क है, उसका स्टेटस अलग है, फार्मर है, उसका स्टेटस अलग है, लेबर है, उसका स्टेटस अलग है, और कलेक्टर है, उसका स्टेटस अलग है। स्टेटस का मतलब समाज में रहने वाले इंसान की उसका स्टेटस क्या है। उसी तरह जुमले में एक लफ्ज का स्टेटस क्या है देखने के लिए तनवीन का इस्तेमाल होता है। तो ये मिलेंगे आपको इस तरह से, वलदुन मिलेगा, कोई तो भी लड़का, अल वलदु खासकर, वलदन नस्बी हालत में मंसूब, अल वलदा मंसूब मखसूस, वलदिन जर्री हालत में, अल वलदी। इस तरह से आपको ये तीनों हालतों में, तो रफा, नसब, जर, 3 शक्लों में, ठीक है ना? इस तरह से 3 शक्लों में मिलेगा। ठीक है भाई। अब यहां से हम 5 मिनट में ये खुद देख लेंगे। अब जरा पढ़ेंगे। अ टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, एक टीचर दाखिल हुआ क्लासरूम। ये जुमले में टीचर के मुतालिक खबर दी जाए, तो टीचर साहब दाखिल हुए, तो टीचर को रफा हालत में आएंगे, लेकिन टीचर को रफा देने की मतलब है उसको पेश दे देंगे। और टीचर के एंटर टाइम हुआ उन्हें क्लासरूम में, क्लासरूम पर इफेक्ट हुआ, इसलिए उसे कहते हैं डिटेल। किसी चीज पर एक्ट हुआ तो उसे नसब कहेंगे। और एक एग्जांपल देखिए, जैद ने मदद किया हामिद की। जैद करने वाला रफा हालत में रहेगा, हामिद मदद पाने वाला नसब हालत में रहेगा। नीचे देखिए, टीचर जब क्लास में दाखिल हो तो टीचर रफा हालत में है और क्लासरूम नसब हालत में। जैद ने पढ़ा किताब से, किताब से, जैद हो गया रफा हालत में, किताब से जर हालत में। तो ये 3 हालतों में आपको कोई भी चीज मिलेगा तो जरा गौर फरमाइए। रफा यानी करने वाले का नाम, फाइल। नसब यानी मफूल का नाम, जिस पर काम हो। जर यानी उसके ऊपर हर जर या कोई भी हर्फ काम करा उस पे,
या फिर मालिक मिल्कियत का रिश्ता है। इस पे डिटेल आने वाला है आपको। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ये 3 शक्लें आएंगी। रफा यानी पेश 1 या 2 पेश, नसब यानी 1 जबर या 2 जबर, जर यानी 1 ज़ेर या। तो ये 3 चीजों से 1-2 जुमले देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ज़ेर आने की वजह देखिए, अल वलदु फिल बैती। अब देखिए अल वलदु पेपर पेश है, किसके मुतालिक बात कर रहे हैं हम? लड़के के बारे में। तो उस पे पेश है तो बोलना रफा हालत में। फिल बैती का मतलब है घर के अंदर। तो फी आने से बैती के नीचे ज़ेर आ गया, तो अल बैतु फिल बैती बना, अल मस्जिद फिल मस्जिद बना, अल गुरफतु फिल गुरफती बना, अल हम्मामु फिल हम्मामी बना, अल फसल फिल फसल बना। तो प्रीपोजिशन के बाद जब भी आएगा फी के बाद आ गया बैत तो बैती हो गया। यहाँ देख लीजिए, ज़हबा ज़ैदुन इला सूक़ी। तो यहाँ पे देखिए ज़हबा ये फेल है, करने वाले को ढूंढिए। यहाँ पे किस पर पेश है? ज़ैद पर 2 पेश है। तो ज़ैद पेश वाला जो है ये रफा हालत है, ज़हबा ये फेल है, अस्सूक किस पर काम हुआ? मार्केट पर। तो अस्सूकी हुआ, क्यों? अल इलल सूकी, इलल सूकी हुआ। अल वलदु फिल बैती। तो कल यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और कल यहाँ से आगे तक चलेंगे, इसी तरह डिटेल में जाएंगे, कोई चीज गड़बड़ में नहीं पड़ेंगे, ताकि अब इसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ना। तो यहाँ से मैं हाफिज साहब के पास दे रहा। तो ये पूरा हफ्ते भर का प्रोग्राम है ना, पूरा के पूरा नाउन इसकी मशक खत्म होंगी 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते में फेल खत्म हो जाएगा, जुमला इसमें, जुमला फेलिया और मुजारे और माजी। पूरे 3 हफ्तों में जो भी हमने पढ़े थे उसका माइक्रो डिटेल में मैं आपको पढ़ा दूंगा, ताकि आपके पास ये 3 वीडियोस अगर अगर 5 यानी 15 वीडियोस अगर आपके पास रहे तो आप वही वीडियोस को देखकर किसी को भी पढ़ा ले सकते। और भी कुछ आपकी गुजारिश है या आपके जरूरत है तो बताइए। सर नोट्स आप देंगे या इसी को कॉपी करना? नोट्स दे चुका हूं मैं, कितने बार बोल चुका हूं। ये सर अच्छा, जैसे मैंने तैयारी की है ना आपने, कहाँ सर? आप हर बार नए नोट्स मुझसे कैसे लेंगे बेटा? मैंने आपको इसके जो है 500 पेज के नोट्स दिया हूं। अच्छा, 500 पेज के नोट्स बड़े हैं, आप देखिए सीधा है। अगर आप बोले थे ना कायदे के रूल्स के भेजते बोलते रूल्स के। हाँ, कायदे के रूल्स जो वो रहेंगे कौन से? सर्फ के जो बताया था मैंने, गैर सही अफवाल के और मजीद फी के, वो दोनों भेजूंगा ये। लेकिन अभी ये तो नोट्स मैंने आपको 2-2 3-3 बार भेजे थे। जी सर ये है हमारे सबके पास। नहीं सर वो मिस हो गए थे हाँ, क्लासेस हमारे, सब इंशाल्लाह है। देख लेते सर। और उसके अलावा आपके पास वीडियो भी रहेंगे, तो वीडियो भी देखते रहिए, आप उसको भी निकाल के नोट्स बना सकते हैं। आप जब खुद के नोट्स बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी बात आगे बढ़ेगी, आपका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपको भी मजा आएगा। जी सर रेडी? इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह। चीजों का फायदा नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकतुल्लाहि व बरकातुहू। दिमाग दे बाबू खुला हुआ है ये
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. آج ہم یہ تسمیہ اور سورہ اخلاص پڑھیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے ہم نے بسم اللہ. سر آپ کو آواز نہیں آ رہی. سر آواز نہیں آ رہی ہے. آواز نہیں آ رہی کیا؟ دور سے آ رہی سر آواز. یہ کلیئر نہیں ہے سر, سلو ہے. آ رہی سلو آ رہی. ابھی آواز آ رہی کیا؟ جی سر آ رہی. جی الحمدللہ. تو شروعات میں ہم نے تعوذ پڑھے تھے, یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیے تھے, 3 ٹکڑے کر کے اس کو پڑھے تھے, اس کی پریکٹس کیے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان اور پھر اس کے بعد الرجیم, الگ الگ کر کے اس کو پریکٹس کیے, پھر اس کے بعد اس کو ملا کے پڑھے. تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے اس کی مشق کی ہے, پریکٹس کی ہے اس کی. اس کے بعد ہے تسمیہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن اور الرحیم. تو پہلے میں پڑھاؤں گا اور آپ سب لوگ پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. اب تینوں کو ملا کے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب تجوید کے اصول کا بتانے کی ضرورت نہیں ہے, باقی نیچے دے رہے ہیں. مطالعہ مقصود جلدی پڑھنا ہے, صرف کھڑا سبق الف متا کے برابر میں اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے. رحمان میں میم کے اوپر کھڑا اور ہاں یا زیر ہی, یہ ہی کو کھینچ کے پڑھنا ہے کیونکہ یا مدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. اس کے بعد ہے سورہ اخلاص. شروعات میں ہے پہلے کیا ہے, قل هو اللہ احد. الگ الگ آپ کر کے پڑھیں گے. تو قل قل یہ اللہ هو اللہ احد. احد. أحد. قل هو اللہ احد. قل هو قل هو اللہ الله أحد. قل یہاں پر ہے اور اس کے بعد ہے ہوا, جو ہمارے پاس ضمیر ہے ہوا. تو ہوا کو پورا پڑھنا ہے, ہا پیش ہو اور واو زبر وا. اس کے بعد ہے اللہ کا نام. لام. تو ان دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے, لیکن واو کی آواز ظاہر ہونا ہے. هو اللہ هو الله
हुवल्लाहु हुवल्लाहु अच्छा Why answer? ये आवाज आ रही क्या? नहीं आ रही है। आ रही लेकिन स्लो है सर। स्लो आ रही क्या आवाज? जी जी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर आपकी। हेडफोन का प्रॉब्लम। अभी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तो ये है हुआ। बात मर्तबा हम लोग गलती क्या करते हैं, ये है हुआ, हा पेश हु है और वाव जबर वाह है, लेकिन बचपन से हम लोग सुनते और पढ़ते आ रहे हैं, ये सूरह के अंदर सुनिए वाव को बराबर तलफ्फुज नहीं करते। कुल हुवा अल्लाहु अहद बोलते बात मर्तबा, बात लोग कुल हुवा अल्लाहु, तो ये वाव के वल्लाह साथ कुल हुवा अल्लाहु, कुल हुवल्लाहु कुल हुवा कुल हुवल्लाहु। नेट कट जाता। आवाज आ रही क्या मेरी? अभी आ रही है। आ रही है, कभी कट आ रही है। रुक रुक के आ रही है। कुल हुवा अल्लाहु, कुल हुवल्लाहु उसके बाद है अहदुन। अहद। यहाँ पे आयत खत्म हो रही, तो आयत खत्म जहाँ पे हो रही, आखिरी लफ्ज का आयत करने का फायदा है कि जो भी हरकत हो दो जबर के अलावा उसको सुकून में तब्दील कर दिया जाता। तो ये हो जाता कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। आपकी भी आवाज जाएगी। हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। अहद। ये दाल के ऊपर जब सुकून आ जा रहा तो यहाँ पे फायदा हो जाता कलखला का। कौन सा फायदा होता? कलखला का। तो दाल की आवाज इको होंगी, टकराएंगी आवाज। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। कुल हुवल्लाहु अहद। उसके बाद है अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। यहाँ पे भी अल्लाह का नाम है और इस आयत में भी अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम से पहले अगर जबर या पेश आया तो अल्लाह के नाम के लाम को मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे, और अगर जेर आया तो बारीक पढ़ेंगे। दोनों भी जगह पे अल्लाह के नाम से पहले जबर है, इस वजह से उसको मोटा पढ़ा जाएगा। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। यहाँ पे भी दाल पे सुकून आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे भी कलकला होगा। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहु अहद। अल्लाहु समद। अल्लाहु समद। उसके बाद है लम यलिद। लम लम यलिद। फिर यहाँ पे दाल पे कलकला होगा। लम यलिद लम यलिद। वलम यूलद। वलम यूलद।
لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد یہاں دیکھو میم ساکن ہے، یہاں پر بھی میم ساکن ہے. نون ساکن اور میم ساکن جب بھی آتا تو اس کے بعد والا حرف ہم کو دیکھنا ہے کون سا ہے. تو میم ساکن کے بعد اگر با اور میم آیا تو غنہ ہوتا، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آیا تو غنہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے یہ دونوں جگہ لم میں غنہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. اس کے بعد ہے ولم، پھر یہاں پہ میم ساکن آیا، اس کے بعد یا ہے، تو با اور میم دونوں نہیں ہے، اس وجہ سے یہاں پہ بھی غنہ نہیں ہوگا. ولم یکن، اب یہ آیا یکن، نون ساکن آ گیا. نون ساکن کے بعد والا بھی حرف دیکھنا ہے کون سا ہے. نون ساکن کے بعد والا حرف ہے لام. لام. تو لام یرملون کے ادغام کے 6 حروفوں میں سے ایک حرف ہے. اس وجہ سے یہاں پہ ادغام کا فائدہ ہوگا، مرج ہو جائیں گی، آواز مل جائیں گی، نون کی آواز لام کے اندر مل جائے گی. اور حروف یرملون کے 6 حروفوں میں 2 حرف غنہ کے دشمن ہیں، وہ لام ہے اور را ہے. تو یہاں پہ لام آیا تو بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے. یہاں پہ ولم یکن لہو، ولم یکن لہو، ولم یقل لہو. نون کی آواز بالکل بھی غائب ہو جائے گی، مل جائے گا لام کے اندر. ولم یکن لہو ولم یقل لہو کفوا احد، کفوا احد. ولم یکن لہو کفوا احد، ولم یقل لہو کفوا احد. ولم یکن لہو کفوا احد. ولم یقل لہو کفوا احد. ایک بار شروع سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. اللہ الصمد، اللہ الصمد. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ولم یکن له کفوا احد. الحمدللہ یہ سورہ پڑھ لیا ہم نے، اب اس کی مشق کریے. اچھا ایک سوال ہے میرا، پہلی آیت قل هو اللہ احد، دوسری آیت ہے اللہ الصمد، تیسری آیت ہے لم یلد ولم یولد، چوتھی آیت ہے ولم یکن لہ کفوا احد. اگر ان آیتوں کو ملا کے پڑھنا ہے، جیسا طوس تسمیہ کو ہم نے ملا کے پڑھنا دیکھے تھے، تو آخری والی حرکت جو ہے وہ با سے ملا دیا جاتا. جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو رجیمی سے ملا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سانس میں دونوں ملا کے پڑھے تھے. اب یہی 4 آیتوں کو اگر ایک سانس میں ملا کے پڑھنا ہے تو کیسا پڑھیں گے؟ پہلی 2 آیتوں کو ملائیں گے ہم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 2 آیتوں کو ایک سانس میں پڑھنا ہے، ملا کے پڑھنا ہے. تنویر سے نہیں پڑھنا کیسا؟ جی بڑھیے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہاں یہ احدن ہے اور یہ اللہ ہے. تو یہ تجوید کا ایک قاعدہ یہ ہے، جب بھی تنوین پہ کوئی آیت ختم ہوتی اور اس کے بعد والا جو اسم آ رہا، کوئی لفظ آ رہا اور وہ الف لام سے آ رہا، تو تنوین کے پیچھے کون سا حرف چھپا ہوا ہے؟ نون ساکن. نون ساکن چھپا ہوا ہے. تو اس کے اندر کا ایک نون باہر آ جاتا اور ایک پیش غائب ہو جاتا. احدن، ابھی بھی یہ کیا ہو رہا؟ احدن. لیکن اس کے بعد میں ملا کے پڑھنے کے لیے یہ نون کے نیچے زیر دے دیتے.
اب یہ بن جاتا احد للہ، اور اللہ کے نام کا شروع کا جو الف نظر آ رہا یہ حمزۃ الوصل ہے. جب شروعات یہاں سے کرتے تو اس کے اوپر زبر دے کے پڑھتے، اور اگر یہاں سے شروعات نہیں ہو رہی پچھلے سے ملا کے پڑھ رہے تو یہ الف حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا. تو یہ نون کی زیر کی حرکت یہ سیدھا ملیں گی اللہ کے لام سے، تو یہ بن جائے گا احد للہ. ابھی ہم اس کو اللہ پڑھ رہے تھے، موٹا پڑھ رہے تھے، اب یہ زیر کی وجہ سے باریک پڑھیں گے. قل هو اللہ احد للہ الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. اگر یہاں پہ رک گئے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ حمزۃ الوصل بھی پڑھا جا رہا اور اللہ کے نام کا جو لام ہے وہ بھی پر پڑھا جا رہا، موٹا پڑھا جا رہا. اب اس کو اگر یہاں پہ ہم آیت نہیں کریں گے، رکنا نہیں ہے، تو یہ نون کے نیچے زیر کے ساتھ اس کو ملائیں گے تو اللہ کے نام کے لام سے پہلے زیر آ گیا تو یہ باریک پڑھا جائے گا. قل هو اللہ احد للہ الصمد. قل هو الله الله أحد الله أحد الله الصمد. احد للہ الصمد. أحد لله الصمد. أحد الله الصمد. لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم يلد ولم يلد ولم يولد يولد ولم له يكن له كفوا كفوا أحد. أحد. یہ خالی ملا کے پڑھنے کا طریقہ تھا، لیکن ہمارا بہتر طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ ہی پڑھنا، ایک آیت کو ایک سانس میں ہی پڑھنا. ٹھیک ہے، تو آج یہاں پہ رکیں گے انشاءاللہ. اچھا، یہ جو لم یلد ولم یولد ہے ابھی ہم نے تجوید سے دیکھے اس کو، یہ ایک آیت اس کا گرامر بتائیے، کون بتائیں گے؟ لم يلد. لم یلد ولم یولد، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ کیا گیا. لم کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ہم حرف ناصب جازم ہے. ہاں، حرف ہے، جازم ہے، حرف جازم جازم ہے. ہے، جازمہ ہے. آنے والے پہلے مضارع کو جزم کر دیتا ہے. ہاں، اور اس یلد کے بعد ہمیشہ کیا آتا؟ فعل مضارع آتا. فعل مضارع کو جزم کر دیتا. جزم کر دیتا، مجزوم. اور کیا کرتا؟ اور کم کیا کرتا؟ لم کیا کرتا اور کیا کرتا؟ ڈڈ ناٹ کے معنی دیتا، ڈڈ ناٹ کے معنی. اور مطلب ماضی میں لے جاتا، مطلب کو ماضی میں لے جاتا. مسجد دے دیتا. معنی کیا ہوتا؟ نہیں ہرگز نہیں، اس نے نہیں جنا اس نے. ہاں، تو یہ جو یلد ہے، یلد، اب لم جنا کے بعد گیا. آپ نے بتایا کہ لم کے بعد ہمیشہ فعل مضارع آتا، تو یہ فعل مضارع کیسا ہے کون سا ہے کیسا؟ اور کون سا فعل ہے؟ صیغہ کون سا ہے؟ ماضی کیا ہے؟ مضارع. واحد مذکر غائب. غائب کا واحد ہاں، واحد مذکر، غائب. واحد ہے. واحد مذکر غائب. اور اس کا ماضی کیا بنے گا؟ ولد ولد يلد. ولدا یلد. یہ فعل صحیح ہے کہ غیر صحیح ہے؟ غیر صحیح صحیح ہے. ہے. غیر صحیح کی کون سے قسم ہے؟ مثال. کلمہ مثال. مثال، معطل ہے. مثال واوی. ہاں. مثال واو. معطل فا، مثال واوی. لم یلد ولم یولد. اچھا، یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. مجھول ہے، مجھول ہے، مجارے مجھول ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. ارے باپ کیا بہت 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 تعریف آپ سے بھی. اللہ حافظ. سر یہ واو عطف ہے. واو عطف ہے. جی. اس نے کسی کو دنا نہ ہو، کسی سے ڈرا گیا. He did not take personally. He did not came to life. آج یہاں پہ رکیں گے. اچھا، کچھ سے
اور جو ریویژن جو چل رہا ہمارا اس کے اندر اور کچھ آپ کو بولنا ہے تو بولیے، یا کوئی سجیشن ہے آپ کا، کوئی مشورہ ہے؟ سر یہ جو ریویژن ہم کر رہے ہیں نا ابھی، جی تو اس کی جو یہ سمری سلائیڈ ہے نا، مطلب جو سر بتا رہے ہیں ابھی پورے پورشن، جی 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 تو ہو یہ ہم کو مطلب بھیجی ہوئی ہے کیا؟ ہاں پہلے بھیجا ہوا ہے، پھر بھی ایک مرتبہ ریسینڈ کر دیتے اس کو کلاس کے بعد انشاءاللہ، گروپ میں ہے وہ۔ سمرائز ہوا ہے نا اس میں، بہت بھیج دیجیے، آسانی ہو جاتی ہے. آسانی ہو جی جائے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جزاک اللہ جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ پڑھ تو